Hello to all my dear students. This is volume 5th of chapter number 11 time, and I welcome you back again to the further explanations of the chapter. So as you can see here, we have chapter number 11, this exercise 11E, and in this we will study about how to convert hours into days, okay, and days into hours, and आवर्स इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड्स. ठीक है, टाइम में बेसिक 3 चीज़ें होती हैं. एक पर्टिकुलर डे होता है और मिनट्स आर देयर एंड सेकेंड्स आर देयर एंड वी नो द थिंग्स. सो लेट्स डू द चैप्टर. विल सी. सो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स फॉर 4 days. For 4 days में स्टूडेंट्स हाउ मेनी आवर्स विल बी देयर? इफ़ 1 day इक्वल्स 24 आवर्स, अगर एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, सो इन 4 days हाउ मेनी आवर्स विल बी देयर? 24 मल्टीप्लाइड बाय 2. ओके, 24 मल्टीप्लाइड बाय 4. सो 4 4 just 16 we have taken, 1 carry, 4 2 जा 8 plus 1 9, 96 hours. So altogether we have 96 hours. Similarly, question number second also. Second one also will be there. 96 is this one, and 9 days we will multiply 9 days by 24. ठीक है, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई अप कर लेंगे, यू कैन ईजिली हैव द आंसर. नेक्स्ट इज सी. सी इज समवट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स. इसमें आप देखिए 6 days and 12 hours इज देयर. ठीक है, 6 days and 12 hours. So in 6 days and 12 hours, in this one 12 hours is already in hours. 12 hours जो है वो ऑलरेडी आवर्स में है, तो उसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे. सिर्फ और सिर्फ 6 days को वी विल कन्वर्ट. सो वी विल कन्वर्ट ओनली 6 days, एंड 6 days को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 24 से. ओके, सो एज वी कन्वर्ट दिस 6 4 is 24 and 2 will be as carry. 6 2 is 12. 12 plus 2 will be 14. Okay, 12 plus 2 will be 14, and then we will add 12 to this. We will add 12. So 4 plus 2 6, 4 plus 1 5, and then 1. So 156. All together we have 156 in this. So we will remember that we will add 12 hours. Okay, we will add 12 hours to 144 hours, because hours and hours will be added. Okay, so as you know, as I think it's clear now. Similarly, you have to do the next question also. D1 also you have to do. 3 days 9 hours. So 9 hours को आप प्लस करेंगे सिर्फ. ठीक है, 3 days you will multiply by 24. So as you can see, we are multiplying, and we will have 4 3s are 12. So 12 we will write 2, and 1 we will put carry, and then 3 2s are 6 plus 1 7. So we have already 72, and then we will add 9 to this. Okay, so finally we will have 81. Okay, 81. Final answer is 81 hours. So like this we will do. So students, this concept, okay, this concept we will imply in everything, in everywhere where there is hours and minutes both. Okay, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है, आप बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं. आपके लिए यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स. सो आपको यहाँ पे मिनट्स को जो ऑलरेडी मिनट्स में है उसको कन्वर्ट नहीं करना. यू डोंट हैव टू कन्वर्ट व्हाट इज़ ऑलरेडी इन मिनट्स, यू ओनली हैव टू कन्वर्ट इज इन आवर्स. ओके, so as you can see here, hours and minutes both are there. So as I have done in question number 1, you will do. So I will not tell you this concept again. So as you can see, 13 hours is there. 13 hours है, तो 13 hours को minutes में जब हम convert करेंगे तो हम multiply करेंगे 60 से, because 1 hour equals to 60 minutes. Okay, so 1 hour equals to 60 minutes. So 13 hours is equal to how many minutes? 13 multiplied by 60. Okay, so already we know that
3 6 will be 18. Okay, then 1 carry will be there. 6 1 just 6 plus 1 7 78. 13 6 78 already you can do like this, and 718 minutes. Okay, 13 multiplied by 6 78, then 0 will be added, then it will be 780 minutes. Okay, next one, 4 hours 25 minutes. So in this one, 4 hours will be converted to 60 and multiplied by 60, and whatever answer we will have, we will add 25 to this. जो भी हमारे पास आंसर आता है हम लोग उसमें 25 ऐड कर देंगे. तो कितना होगा? 6 4 जो 24, तो 240 plus 25. So we will have 5, 4 plus 2 6, and then 265 minutes. We will have 265 minutes, as you can see here. In the same way you have to do C and D one also. So as you all know, students, that this concept, as we has already seen in question number 1, as in the same way we will do question number 2 also. Okay, furthermore going, question number 3 is also in the same way. It will be also multiplied by 60, because 1 minute also equals to 60 seconds. So 1 hour equals to 60 minutes, and 1 minute is equals to 60 seconds. So 7 minutes, how many seconds are there in 7 minutes? We will multiply it by 60 straight away. So 7 6 are 42, and it will be 420 seconds. Always remember, when you have to write the seconds and minutes and hours also, you don't have to leave like this. After converting, you have to mention the unit also. Okay, so already you have to write seconds, you have to write minutes and hours, whatever is there. इस तरह से आपको करना है. ठीक है. So 18 minutes already, it's very easy. Multiplying by 60, you can already have the answer. And C and D both are the same concept, as I have told you further also, कि इसमें आपको 45 seconds को से प्लस करना है, multiply 16 by 60, and then 45 you will add. So see, like this we will see 16 minutes multiplied by 60, we keep it, and then 6 6 is 36, 3 carry will be there, then 6 1 just 6, then 7 8 9 96. Okay, so 6 6 are 36, 3 carry, 6 6 7 8 9 960. Okay, 960 seconds will be the answer. Okay, so in the same way you have to do the D1 also. So all of you, please, whatever I'm leaving, जो मैं छोड़ रही हूँ student, whichever I'm not telling, that is your homework, that is your duty, that you have to do that. And you have everything I'm telling how you will relate the one question with other, and you have to solve. Okay, so similar type of questions are there, and I hope you will solve this also. Going further, we have addition and subtraction of time. Let me tell you, students, this is the last volume in which I will be covering all the concepts here. Okay, this will be the last volume. So addition and subtraction of time. Observe these examples. ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम करना है, और हम स्ट्रेट अवे मेरा बहुत ही अच्छा मेथड है जो मैं आपको क्वेश्चन वाइज में समझाऊंगी. आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 11F, एंड आफ्टर 11F वी हैव 11G. ओके, सो बोथ द थिंग्स वी विल सी, एंड आफ्टर दैट वी हैव मेंटल मैथ्स दैट वी विल सॉल्व फर्दर. ठीक है, तो इसको हम देखते हैं. तो 11F में हमें मिनट्स टू मिनट्स और आवर्स टू आवर्स को ऐड करना है. ठीक है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं. सो लेट्स हैव वन क्वेश्चन. 5 hours 18 minutes, 6 hours 48 minutes. ओके, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपी में लिखेंगे HR. लेट मी रब इट फर्स्ट. विल राइट HR and minutes, MIN. Suppose in simple thing we have written MIN. So 5 hours के नीचे हम लिख देंगे 6, मिनट्स का मिनट्स में लिख देंगे टोटल पूरा, 18 के बाद 48.
Okay, 48. We'll add this. 8 is 16. Then 1 carry. Okay, 4 plus 1 5 plus 1 6, 66 minutes. Okay, then 5 plus 6 is 11. So we have 11 hours and 66 minutes. So students, इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको मैं यहाँ बता रही हूँ. आई एम टेलिंग यू हियर. रूल्स आर दैट जब भी 60 मिनट्स होते हैं तो उनको कन्वर्ट करके 1 आवर में लिखते हैं. whenever there is 60 minutes we will convert that and write in 1. Okay, and you can see there are 66 minutes. Altogether we have 66 minutes. इसमें से स्टूडेंट जब हम इसको रीग्रुप करेंगे, ठीक है, सबसे पहला मेथड है कि आपको इस तरह से पहले मिनट्स का मिनट्स में और आवर्स को आवर्स में लिखकर प्लस कर लेना है और उसके बाद आपको रीग्रुप करना है. ठीक है, मैं दूसरा कलर ले रही हूँ. यू हैव टू रीग्रुप. ओके, तो मैं सिर्फ RG लिख रही हूँ. RG. ओके, रीग्रुप करने के बाद जो 66 है इसमें से हम 60 निकाल देंगे. ओके, 60 मिनट्स को हमने इसमें से निकाल लिया. क्यों निकाल लिया? बिकॉज इन मिनट्स व्हेन वी विल कन्वर्ट इन आवर्स, ओके, व्हेन वी विल कन्वर्ट इन आवर्स it will be remaining, skipping out all the minutes which is extra. So 60 will go in hours. तो 60 कैरी लग के आवर्स में चला जाएगा और इसमें 1 कैरी लगेगा. ये ओके, ओनली 1 कैरी विल बी एडेड. तो जब 66 में से 60 माइनस, व्हेन वी विल माइनस 60 बाय फ्रॉम 66 वी विल हैव 6 ओनली लेफ्ट. ओके, सो रीग्रुप करने के बाद स्टूडेंट्स सब में ये अप्लाई होगा, इसलिए सीख लीजिए इसको. तो 66 में से जब 60 निकाल दिया तो ये मिनट्स में है. ठीक है, ये मिनट्स में है. आप देख सकते हैं कि मिनट्स के अंडर में लिखा है तो मिनट्स है. तो जब ये आवर्स में जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा आवर्स में, तो ये आवर्स में जब जाएगा तो ये 60 कैरी नहीं लगेगा, ये सिर्फ और सिर्फ 1 कैरी लगेगा. ठीक है, तो यही स्टूडेंट्स यही तरीका है. दिस इज़ द मेथड हाउ वी convert and how we add the minutes and hours. So यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 12 hours and 6 minutes. ठीक है, 12 h and 6 minutes we have. ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा हमारा आंसर. आई होप यू हैव लर्न दिस. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट वी सी 6 hours 10 minutes, 8 hours 54 minutes, 4 hours 20 minutes. Okay, so three we have now three of them. So let's do this one also in the same way. We'll do, just we have one more strand here. So hours लिखते हैं हम पहले. HR hours, minutes. So very simply 6, फिर उसके बाद 10 मिनट्स में 10 मिनट्स, इसके नीचे 8 एंड देन 54 एंड देन 4 and 20. इसको हम प्लस कर देंगे. तो 4 ये 4 हो गया. 5 + 1 6, 6 + 2 8, 84. और ये क्या हो गया? 6 + 4 10, 10 + 8 18. सो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 18 hours and 84 minutes. ठीक है, इसको भी रीग्रुप स्टूडेंट्स करेंगे तो हम माइनस करेंगे 84 में से 60 निकाल देंगे और इसको आवर्स में कन्वर्ट करके रीग्रुप करेंगे. सो रीग्रुप करने के बाद ये क्या हो जा रहा है? RG लिख देते हैं हम, कलर चेंज करते हैं फिर से. ठीक है, सो 84 में से 60 निकाल दिया तो ये कितना बचा? 4 एंड देन 8 में से 6 माइनस और 24. तो ये 60 जो है कैरी लग के ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19. आई होप ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आप लोग को. ये हो जाएगा 19 24 minutes, 19 hours 24 minutes. ठीक है, like this we will do as you can see.
ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आई वांट टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज, एंड वी हैव हेयर सेकेंड्स ऑल्सो। अब हमारे पास सेकेंड्स भी है। 10 आवर्स 10 मिनट्स 28 सेकेंड्स, 8 आवर्स 33 मिनट्स 45 सेकेंड्स। तो हम लिखते हैं अब फाइनल आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो 10 में 10 लिख दिया, फिर 10, फिर 28, फिर लिखा 8 33 एंड 45, 8 33 45। सो इस तरह से हम रीग्रुप करेंगे। तो रीग्रुप करने के बाद, सॉरी प्लस करने के बाद 8 + 5 इज़ 13, 3 लिख दिया, 1 कैरी, 4 + 2 6 + 1 7, 73। ओके, और फिर उसके बाद इसको प्लस किया 3 43, और उसके बाद 18 43 73। ठीक है, अब उसको रीग्रुप करेंगे, सबको रीग्रुप करेंगे। तो रीग्रुप करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो है स्टूडेंट्स कि सेकंड्स को मिनट्स में हम चेंज करेंगे। तो इसमें से भी हम 60 मान लीजिए निकाल देते हैं, 60 सेकंड्स को निकाल देते हैं। तो 60 जब यहाँ पे कन्वर्ट होके जाएगा तो यहाँ पे 1 कैरी लगेगा। तो इसमें से पहले माइनस करेंगे, और 73 में से 60 माइनस करने के बाद आएगा हमारे पास 3 यहाँ पे हो जाएगा, 7 - 6 13। तो 13 सेकंड्स बच रहे हैं। ओके, 73 - 60 विल बी 13। तो 13 ये जो है हमने लिख दिया सेकंड्स में। तो 1 कैरी लग गया। अब ये 1 कैरी लगने के बाद ये हो जाएगा 44। ठीक है, ये हो जाएगा 44। तो हमने यहाँ 44 भी लिख दिया। और स्टूडेंट्स 44 जो है लिमिट इसकी ओके सॉरी, सो 44 की लिमिट स्टूडेंट्स है, और जब तक ये 59 है तब तक हम इसको मिनट्स में ही लिख सकते हैं या सेकंड्स में लिख सकते हैं। पर जैसे ही अगर 60 हो जाता है तो हम उसको कन्वर्ट करके आवर्स में डायरेक्टली लिख देंगे, या 60 से ज़्यादा है तो हम उसको उसमें से मिनट्स के पार्ट को निकाल देंगे और जितना लेफ़्ट है उतना हम लिख देंगे। पर यहाँ पे 44 है, सो वी विल नॉट वी विल लीव इट लाइक दिस। हम उसका कैरी लगा के सिर्फ इसको छोड़ देंगे। आई होप ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको। तो 44 को 44 रहने देंगे एज इट इज़, एंड देन 10 + 8 इज़ 18। तो 18 आवर्स का 18 आवर्स सिंपल रहेगा। तो 18 आवर्स 44 मिनट्स एंड 13 सेकेंड्स। सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है कि सेकंड्स में एक्स्ट्रा हमारे पास सेकंड्स थे जिसको हमने उसमें से निकाल कर मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, 10 और 28 फर्स्ट वाला ये जो पार्ट है दिस इज़ ऑल टुगेदर, एंड देन सेकेंड पार्ट इज़ ऑल्सो ऑल टुगेदर। ठीक है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक साथ में है, इसलिए इसमें हम रीग्रुप कर सकते हैं, ये रीज़न है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 10 आवर्स 18 मिनट्स 20 सेकेंड्स, 6 आवर्स 15 मिनट्स 36 सेकेंड्स एंड 4 आवर 45 मिनट्स 30। इसको भी लिख लेते हैं हम पूरा। लिख लेते हैं 10, फिर 18, और फिर उसके बाद 20, उसके बाद यहाँ लिख देते हैं 6, यहाँ लिख देते हैं 15, और यहाँ लिख देते हैं 36। ठीक है, और इसके बाद लिख देते हैं हम इसके बाद हम लिख देते हैं 4, हाँ ठीक है, 4 45 एंड 32। ओके जस्ट अ मिनट। ठीक है, 15 के बाद लिख दिया हमने 36, 4 45 एंड 32, 4 45 एंड 32। ठीक है, इसको सबको प्लस करते हैं पहले। तो 6 + 2 8, 3 + 3 6, 6 + 2 8। ओके, एंड देन 5 5 10, 10 + 8 18, 1 कैरी अगेन, देन 4 + 1 5 6 एंड 7 78 हो गया ये, एंड देन 6 + 4 10 10 10 20। ये फाइनल आंसर है हमारा।
तो इसमें से स्टूडेंट्स हम देखेंगे कैसे करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सब्ट्रैक्ट 60 फ्रॉम 88. तो 60 सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसमें कैरी लगाते हैं. तो फिर से इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग के पास बचेगा 8 और 2 28, और 60 जो है ये कैरी लग जाएगा फिर से ऊपर. 1 मोर कैरी विल बी एडेड. तो 1 मोर कैरी स्टूडेंट्स लगेगा तो ये हो जाएगी 79. ये इसमें है, ठीक है. एक्चुअली बार बार स्क्रॉल हो जा रहा है. सो 1 विल बी एडेड, देन वी विल हैव 79. तो पहले हम ऐड करेंगे, उसके बाद फिर रीग्रुप करेंगे. तो ऐड करने के बाद हमने यहाँ क्रॉस करके इसको लिख दिया 79. अब 79 में से फिर 60 माइनस करेंगे. तो 60 माइनस करने के बाद हमारे पास बचा 9 माइनस 0 गया 9, और 7 से गया 1 19. ठीक है. इसमें हमारे पास फाइनल कितना बचा था, 28 बचा था. तो 28 रहने देते हैं, 28 सेकेंड्स. और फिर उसके बाद जब 60 निकाल दिया उसमें से तो 19 बचा, और 60 को हम इसमें कैरी लगाएंगे तो ये कितना कैरी जाएगा, 1 कैरी. बिकॉज 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर. ये 1 कैरी जाएगा. ओके, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 1 कैरी. ठीक है. अब मैं उसको पूरा प्रोसीजर के साथ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. जब आप 66 ये वाला निकालेंगे, सेकेंड्स वाला 66 सेकेंड्स वाला निकालेंगे, तो जब आप 60 निकाल देंगे तो ये जब कैरी जाएगा स्टूडेंट्स तो ये 1 कैरी लगेगा. बिकॉज 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स. और 60 सेकेंड्स पूरा जब कन्वर्ट होगा 1 मिनट में तो 1 की कैरी लगेगी. सिमिलरली ये जब 60 जो है ये आवर्स में हो रहा है कन्वर्ट, तो ये भी आपका 1 ही कैरी लगेगा. तो 1 कैरी फिर लगने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये हो जाएगा 21. ठीक है, हम लिख देते हैं इसमें 21. ये हो जाएगा 21. अब ये 21 स्टूडेंट्स एज इट इज़ रहेगा, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आवर्स सबसे बड़ा होता है. ओके. सो आवर्स. अब पूरा रीग्रुप करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल आंसर आता है 21 आवर्स 19 मिनट्स एंड 28 सेकेंड्स. ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है. मिनट्स एंड 19 मिनट्स एंड 28 सेकेंड्स. ठीक है, इतना है. तो ये प्रोसीजर है, ये फाइनल आंसर है आपका. सो मैंने 4 क्वेश्चंस को इसको एक्सप्लेन कर दिया है आपको. अब आइए सब्ट्रैक्शन देखते हैं. और स्टूडेंट्स ये थोड़ा टफ भी था, इसलिए मैं एक एक आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ आप में इसमें. ठीक है, फिर हम फर्दर जाते हैं क्लास में. सो सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन में हम सिर्फ रिवर्स प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे. रिवर्स प्रोसेस में हम 60 कैरी उसको देंगे. ठीक है, हम आइए देखते हैं, करते हैं इसको. तो पहले सबसे करते हैं 15 आवर्स 25 मिनट्स फ्रॉम 17 आवर्स 37 मिनट्स. ठीक है, सो विल डू दिस. 17 आवर्स 37 मिनट्स 15 आवर्स 25 मिनट्स. इसको करते हैं हम. तो ये वाला बहुत सिंपल है, इसको इसलिए फर्दर हम बहुत इजीली कर सकते हैं. 7 - 5 ये 2 हो जाएगा. ठीक है, 7 - 5 2, और फिर 3 - 2 1. ठीक है, और 7 - 5 2. तो 2 आवर्स 12 मिनट्स. ये इजी था, काफ़ी इजी था ये 2 आवर्स और 12 मिनट्स हो गया. ठीक है, ये डन है. नेक्स्ट है 13 आवर्स 56 मिनट्स फ्रॉम 16 आवर्स 48 मिनट्स. ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आपको देखना होगा. लेट्स सी. सो हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे आवर्स एंड मिनट्स. ठीक है, तो 16 मैंने लिख लिया और यहाँ 48 लिख लिया, और 13 और फिर 56. ठीक है, तो अब 48 में से 56 माइनस नहीं होगा. वी कैनॉट सब्ट्रैक्ट 56 फ्रॉम 48. सो ये 16 इसको कैरी देगा, और जब ये कैरी देगा स्टूडेंट्स तो इसके पास हो जाएगा 60 प्लस.
ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 60 हमको प्लस करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आवर्स जो है वो कभी भी जब भी कैरी देगा मिनट्स को, तो वो अगर 1 आवर ही देगा तो वो मिनट में कन्वर्ट होकर 60 मिनट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यही रीज़न है कि जब ये कैरी देगा तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 48 + 60। ठीक है, तो 15 यहाँ हमने लिख दिया है और 48 + 60 हम करेंगे तो 8 + 0 8 और 6 + 4 10 108, और 108 में से अब हम 56 को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, 15 में से फिर हम ये नीचे लिख देंगे 13। तो रीग्रुप करने के बाद हमारे पास ये फाइनल क्वेश्चन आ रहा है जो कोई हमको सॉल्व करना है। और स्टूडेंट्स इन सब्ट्रैक्शन वी हैव द मेन कॉन्सेप्ट दिस वन, यही मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। तो 108 में से आप 56 माइनस करते हैं, 8 - 6 = 2, सॉरी, सो 8 - 6 वी हैव 2 हियर। ठीक है, और 10 में से 5 माइनस हुआ तो 5 हो गया। ठीक है, 52 ईजिली वी आर राइटिंग इट डाउन, और फिर 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, तो 2 आवर्स 52 मिनट्स रीग्रुप करने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये आवर्स है, आवर्स एंड मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये कैरी देता है तभी हम माइनस कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमने देख लिया है, लेट्स सी थर्ड एंड फोर्थ। आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, फर्दर क्वेश्चंस में देखिए 9 आवर्स 15 मिनट्स फ्रॉम 10 आवर्स। ठीक है, चलो इसको करते हैं हम लोग। सो नाउ वी हैव 10 आवर्स, तो आवर्स को हम लिख देते हैं 10, मिनट्स में हम कुछ नहीं लिखेंगे अभी। सो जब हम 9 आवर्स 15 मिनट्स को माइनस कर रहे हैं 10 आवर्स से, तो अब 10 में से ये कैरी जाएगा इधर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कैरी लेने के लिए कुछ है नहीं, बट स्टिल जब आवर्स मिनट्स में ट्रांसफ़र होगा कि ये माइनस कर पाए, तो यहाँ पे 60 हम आराम से यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 60 स्टूडेंट्स किसी में भी यहाँ पे जब वो कैरी ले रहा है तो वो उसमें सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो उसको उसमें प्लस कर रहे हैं, हम उसको पूरा हम प्लस कर रहे हैं। और स्टूडेंट जितने भी आपके नंबर के कैरी सब्ट्रैक्शन है या कैरी मल्टीप्लिकेशन, कैरी एडिशन है, उन सब में आप डिफरेंट तरीके से करते हो, पर टाइम में स्टूडेंट्स आपका डिफरेंट तरीके से होगा। ठीक है, और आप बार बार इसलिए इस वॉल्यूम को बार बार रिवाइज करके देख सकते हो, फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपको ये कैसे करना है। ठीक है, तो ये 60 आपने इधर ले लिया और यहाँ लिख दिया 9। ठीक है, तो 60 में से 15 माइनस कर देंगे, तो 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, और फिर ये 5 फिर से हो गया, 5 में से 4 गया, और 5 में से 1 गया 4 हो गया 45, और 9 में से 9 गया 0। तो ऑल टुगेदर हमारे पास कितना बचा 45 मिनट्स। सिर्फ और सिर्फ 10 आवर्स में से 9 आवर्स 15 मिनट्स माइनस कर देंगे तो 45 मिनट्स बचेगा। और स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकली भी आपको पता है। ओके, तो यही स्टूडेंट्स रीज़न है, यही तरीका है। जब हम आवर्स में से निकाल लेते हैं 1 आवर को, तो वो जब मिनट्स में लिखेंगे तो वो 60 लिखेंगे। ठीक है, ये थी एक्सप्लेनेशन इसकी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं 6 आवर्स 12 मिनट्स 20 सेकेंड्स फ्रॉम 15 आवर्स 24 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। लेट्स डू दिस वन ऑल्सो। तो हम लिख देते हैं पहले 15 आवर्स 24 मिनट्स and 45 seconds, then 6 hours 12 minutes and 20 seconds। तो पहले देखते हैं कि इसमें से माइनस हो रहा है कि नहीं। तो माइनस तो हो रहा है फर्स्ट वन। ठीक है, तो 45 में से 20 माइनस करना है, ये हो गया, माइनस हो गया इजीली हमारा। 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 12। ठीक है, 12 25 एंड देन 15 में से 6 माइनस करना है, तो 15 - 6 विल बी 9। ठीक है, ये तो इजी था। इसमें इजीली माइनस हो सकता है स्टूडेंट्स, इसीलिए हम कहीं भी कुछ भी कैरी नहीं ले रहे हैं। इजीली इसमें से सेकेंड्स में से सेकेंड्स, मिनट्स में से मिनट्स और आवर्स में से आवर्स माइनस हो गया। सो दिस वॉज क्वाइट ईजी एज यू हैव सीन। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर।
फाइनल आंसर है 9 hours 12 minutes and 25 seconds. Okay, this was the end. So now let's see next one, calendar. Okay students, कैलेंडर में हमको बस मेन चीज़ ये देखनी है कि कौन से मंथ में कितने दिन हैं, और हमको उसमें एडिशन ऑफ द डेज ऑल्सो वी हैव टू सी. सो वी हैव हियर द नेम ऑफ द मंथ्स एंड द नंबर ऑफ डेज. ठीक है, जनवरी में हमेशा 31 डेज होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, मई में 31 होते हैं. ठीक है, जुलाई अगस्त में 31 होते हैं, अक्टूबर में 31 होते हैं, दिसंबर में 31 होते हैं, और बाकी सब में 30 होते हैं एक्सेप्ट फेबररी विच हैज़ 28 और 29 डेज. ठीक है, इन केस ऑफ लीप ईयर में 29 डेज हो जाता है, और बाकी नॉर्मल डेज़ में जैसे 365 डेज़ होते हैं ईयर में, ये 28 डेज़ होता है. तो आप लोग को स्टूडेंट्स बहुत ईजिली ये देखना है कि आपको लर्न ये कर लेना है. ठीक है, यू हैव टू लर्न दिस, ये आपको लर्न करना है. ठीक है, so a calendar is a record of the months, weeks and days in a year. A year has 12 months. Along the months along with the number of days in each are given below. ठीक है, अब एग्जाम्पल 8 देखिए आप लोग. How many days are from 15 August to 13 November? ठीक है, 15 अगस्त से लेकर 30 नवंबर तक कितने दिन होंगे. सो हम एक एक दिन को प्रॉपरली काउंट करेंगे. ओके, सो डेज लेफ्ट इन अगस्त. ठीक है, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं हम कि कितने दिन हमारे अगस्त में बचे हैं. सो ऑलरेडी इन अगस्त वी नो देयर आर 31 डेज, तो 31 माइनस 15, 31 में से 15 माइनस कर दिया, हमारे पास बचा 16. ठीक है, 16 हमने ले लिया. अब डेज इन सितंबर एंड अक्टूबर. सितंबर और अक्टूबर में कितने दिन होते हैं. सितंबर में 30 होते हैं और अक्टूबर में 31 होते हैं, इसको भी हमने प्लस कर लिया, तो ये हो गया 61. डेज इन नवंबर, 13 नवंबर तक का डेट हमें मिला था कि उतने से कितने दिन हुए. ठीक है, सो फाइनली वी हैव 16, 61 एंड 13 ऑल्सो. तो हम इसको सिंपल प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज निकल गए. ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स डेट जब हम भी काउंट करते हैं, हमें नंबर ऑफ मंथ्स भी, नंबर ऑफ डेट्स इन पर्टिकुलर मंथ पता होना चाहिए, याद होना चाहिए. ठीक है, ओके, सो इन दिस वे वी विल सी. सो लेट्स सी द एक्सरसाइज नाउ. तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज बिटवीन द फॉलोइंग डेट्स, इंक्लूड द डेट्स मेंशन. ठीक है, 11 मार्च टू 27 मार्च. सो दिस इज क्वाइट इजी ऑल्सो. सो 12 मार्च आप देख सकते हैं. 12 मार्च से स्टार्टिंग करते हुए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. तो 27, 12, 13, 14, 15, 16, 17. तो ऑल टुगेदर वी हैव 17 डेज. इसको आप फिंगर पे सिंपली काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, लिख देते हैं फिंगर पे, लिख देते हैं 17 डेज. ओके, 17 डेज. ये तो इस तरह से स्टूडेंट्स नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग आपको इसको करना है. सो स्टूडेंट्स, whatever problem you have in this, you solve all these questions. ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे जूम क्लास में आपसे पूछ सकते हैं ये सब पर्टिकुलर क्वेश्चंस. ठीक है, so this is the end of the chapter now. So this is very easy and I know you can solve this question. Please solve it, 11G, and whatever question you don't know please ask me. This is very easy students, so I know you can do it. ठीक है, जो नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं मुझसे. थैंक यू ऑल ऑफ यू.